Hi loves, how are you all? I hope you guys are doing well. This is a reading to understand what you don't see coming. आपकी लाइफ में अभी क्या आ रहा है या क्या होने वाला है जिसका अभी आपको कोई आइडिया नहीं है, जिसके बारे में अभी आपको कोई न्यूज़ नहीं है। हो सकता है ये चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी हो। सो लेट्स सी कि कैसे कार्ड्स आते हैं, कैसे रीडिंग आती है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू द रीडिंग, आई होप दैट यू विल लाइक, शेयर and especially subscribe the channel. Okay, it really helps me guys. Okay, so let's see. Vaiguruji, what is coming towards all the people who are connecting with this video? What is coming in their life right now? Okay, what is coming in their life? Okay, very specific messages. Okay, anything else, Vaiguruji? Anything else? Okay, let me give it one more shuffle. One. Okay, any last cards? Okay, I think I'm gonna stop here now. Page of Pentacles, and we had one flipper as well, which is okay, King of Cups. Lot of cards we got. King of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Swords. We got Major Arcana, the Lovers, the High Priestess. Okay, these two Major Arcanas are here along with the Judgment. Okay, the Tower. So just give me a second. I'm gonna put all these cards so that I can understand the entire picture. Yeah. So the first card that I got is this Three of Cups in reverse. So maybe you were in that phase of your life. आप अपनी लाइफ के उस फेज में थे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन और एनी सॉर्ट ऑफ intoxication. Maybe you were taking a lot of you were indulging, basically what I'm trying to say. You were indulging into smoking, alcohol, and all those sort of things. Late night partying was happening. When it's in upright, it's like celebration. It's like friends being really close to each other and enjoying themselves out. But when it's in reverse, it's like they're still enjoying, but it has a sense of toxicity in it. Okay, so it's like late night late night going out, late night partying with your friends, and the friends are not even the good friends, they are toxic. Okay, so people causing issues. So maybe you were wanting, आप चाह रहे थे कि अपनी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशन से बाहर आ जाए, या if you were indulged into some sort of things, maybe you were indulgent into alcohol or smoking. आप चाह रहे थे कि आप उस चीज़ से बाहर निकल आए, ठीक है, या कोई दोस्त था जिसने आपको बैक स्टैप किया था, ठीक है, आप उससे मूव ऑन कर जाए. सो आई थिंक दैट इज हैपनिंग. You are gathering that courage to cut off all your shadow sides and even choose better people. The circle that you were with previously ना, आप उसको भी let go कर रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को भी जाने दे रहे हो. जो पुराने लोग जिनके साथ आप पार्टीज करते थे वो आपके लिए अच्छे नहीं थे, स्पेशली पहली बात क्योंकि उधर कंजम्पशन हो रही थी चीज़ों का, ठीक है. और दूसरा चीज़ ये भी है, ऑनेस्ट नहीं थे, ऑनेस्टी नहीं थी, ठीक है. दे वर गोइंग बिहाइंड योर बैक, दे वर क्रिएटिंग इश्यूज एंड ड्रामाज. और उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया था जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना था, रात रात पार्टी करना था, ठीक है. उन लोगों ने दे वेंट बिहाइंड योर बैक. ओके, and they did something some sort of betrayal. Okay, you trusted them in some sense और वो ट्रस्ट पूरा नहीं कर पाए, इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है. सो उन्होंने तभी आपका ये ड्रीम था कि आप मूव ऑन कर जाओ, ठीक है. एंड वो तो ये तो हो ही रहा है विद द टावर कार्ड. आई एम सीइंग एंड ऑफ पार्टनरशिप, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, एंड ऑफ एनीथिंग दैट वॉजंट बिल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. सो नेक्स्ट जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो आपका यही हो रहा है कि यू आर मूविंग अवे,
you are ending connections with people who are not right for you. Okay, and आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में. आप पहले तो अपने एस्पेक्ट्स को क्लीन कर रहे हो. ठीक है, आपके ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स थे आपकी लाइफ में जो आपको स्टक रख रहे थे, जो आपको ये डार्कर एनर्जीज में रख रहे थे. पहले तो आप लोगों को जाने दे रहे हो, आप फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शंस को एंड कर रहे हो. आपके नेक्स्ट चैप्टर में ये हो रहा है. दूसरा, आप खुद को हील कर रहे हो. आप खुद के इनर चाइल्ड से, खुद के रियल सेल्फ से जुड़ रहे हो. ठीक है, वी सी पीपल नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, राइट. सो आप खुद के साथ ट्रांसपेरेंट हो रहे हो और खुद से अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे ऐसे कौन से शैडो सेल्स थी जिन्होंने ये सब होने दिया. और जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ, शायद मैं बहुत ज़्यादा लोनली था, शायद मैं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रहता था, इसीलिए लोगों ने मेरा फ़ायदा उठा सके, राइट. सो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है एंड उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से हीलिंग इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. नेक्स्ट चैप्टर में आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो एंड आई एम ऑल्सो सीइंग आप ना स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी है. ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो रहे हो. आप कोई ना कोई न्यू डेविएशन टूल सीख रहे हो, या आप कोई हायर एजुकेशन कर रहे हो, कोई PhD, कोई मास्टर्स, वेयर एवर यू आर, आप उससे एक स्टेप आगे जा रहे हो. ओके, एक तो ये चीज़ वेरी क्लियर है यहाँ पे. दूसरा, आपको सही और गलत में फ़र्क समझ आ रहा है. ठीक है, आप कोई ना कोई डिविएशन टूल से जुड़ रहे हो, चाहे वो टैरो हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वैदिक हो, कोई ना कोई आप टूल से जुड़ रहे हो एंड उसकी वजह से एक एनलाइटनमेंट आपको मिल रही है. एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, मेरे आगे के फ्यूचर के लिए सही और गलत क्या है. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट, ये तो आपका हो गया एक पर्सनल हीलिंग की जर्नी. ठीक है, एंड देन आपने एक स्टेप अपने लाइफ में आगे एक स्टेप बढ़ाया है. या तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो या आप हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हो. ये दोनों का अमालगमेशन भी हो सकता है. ठीक है, दूसरी चीज़, पहले मैं ना लव साइड की बात करूंगी, देन आई विल टॉक अबाउट योर करियर बिकॉज करियर इज ऑल्सो लुकिंग अमेजिंग. या व्हाट आई सी नेक्स्ट, एक आपका मैंने बता दिया. दूसरी चीज़ जो मेजर आपकी लाइफ में हो रही है ना, आप यू आर कमिंग इन यूनियन विद यू नो योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम. ओके, आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ रहे हो और ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है. दिस कैन इवन लीड टू मैरिज, दिस कैन इवन लीड टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ओके, सो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो एंड किंग एंड क्वीन कोर्ट कार्ड्स भी हैं हमारे पास. King of Swords and Queen of Pentacles. Okay, so you are finding your right match. Okay, अगर आप व्यूमेन इस वीडियो को देख रहे हैं then you are finding the perfect husband material, जो ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, जिसको who believes in traditional ways in marriage. Okay, he is the provider, he is not a 50-50 person. Okay, कि 50% आप बिल पे करो, 50% है. No, he is the provider, he is the leader, he is the control taker, decision maker. Okay, companionship, जिनके लिए companionship is very important. This person could have a good post. और अगर मैं fields की बात करूँ, किस field से ये इंसान हो सकते हैं, ये सर्जन, डॉक्टर, हीलिंग, कोई भी हीलिंग सेक्टर. ठीक है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, लॉयर, ये दो मेजर मुझे दिख रहे हैं फील्ड ऑफ वर्क. बाकी अगर ये इन दोनों फील्ड से नहीं भी हैं तो ये कोई हाई पोस्ट पे ही होंगे. ठीक है, सो आप एक नए यूनियन में एंटर कर रहे हैं. और अगर आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, देन यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्सन इन योर लाइफ जो बहुत अबंडेंट है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल है. अभी तक उनके पास जो भी मनी है उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, अपनी सम्मत से वो मनी गैदर करा है और काफ़ी नर्चरिंग है. ठीक है, ये देख रहे हैं मनी को कितने नर्चरिंग वे से ये देख रही है. और इनकी लाइफ में रैपिड करियर ग्रोथ देखा है इन्होंने. ठीक है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई कला है इनके पास जिसकी वजह से इन्होंने इतनी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करी है. सो यू आर अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ एंड आई थिंक दिस इमोशनल, ये इमोशंस का एक्सप्रेशन है. सो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में ना, या तो आप अप्रोच कर रहे हैं अपने पार्टनर को, शेयर कर रहे हैं इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, या तो वो
कर रहे हैं, बट एक्सप्रेशन ऑफ लव इज हैपनिंग आपके नेक्स्ट चैप्टर में, एंड इट्स गोना मेक बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, एवरीवन हु इज इन्वॉल्व वेरी हैप्पी. Okay, very emotionally satisfied. So second cheese, once you let go of anything that's not working out, you are becoming more spiritually inclined, and then you're attracting a really good partner. Along with that, आपके mind में ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोजेक्ट है, कोई ना कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में होगा, ठीक है. और जब आप इस जर्नी से निकलोगे ना, जब आप टॉक्सिक लोगों को, जिनको हमें छोड़ने की नीड थी, जिनके बारे में हमने बात करी थी, राइट, है ना, जब आप इन लोगों को छोड़ोगे तो आपके लिए वो एकदम से करना ईजी नहीं होगा, ठीक है. इट कैन कॉज यू अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक इवन, बिकॉज हमने देखा बैक स्टैबिंग की एनर्जी थी. सो जो भी चीज़ आपका दिल दुखाएगी, आपने फिर भी अपना काम करना रोकना नहीं है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप रोकोगे ही नहीं, बेसिकली इज व्हाट आई एम सीइंग. ओके, आप बहुत फोकस्ड रहोगे, आप अपना फोकस सारा मनी पे लगा दोगे, जिस चीज़ को भी लेके आप पैशनेटेड हो, यू नो, यू विल पुट योर एफर्ट्स देयर. और चाहे आप ट्रॉमाटाइज हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप दुखी हो, यू आर नॉट गिविंग अप, आप काम कर रहे हो, ठीक है. एक ये चीज़ मुझे दिख रही है. दूसरा ये है, या कंटिन्यूस एफर्ट्स पुट कर रहे हो, और उसी की वजह से हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया में कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, और हो सकता है आपकी कोई हेल्प भी करे इस चीज़ में. मे बी यू आर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल इन योर लाइफ हु गोना हेल्प यू इन योर दिस न्यू वेंचर, ठीक है. एंड थ्रू सोशल मीडिया आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे. ओके, बस आपको अपने एंगर को बचाना है, उसको कम करना है, फ्रस्ट्रेशन को बचाना है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की नीड है, ठीक है. एंगर में टैप एंड शॉर्ट टेम्पर्डनेस को कंट्रोल करना है, ठीक है. और आपका सारा फोकस आपके हार्ड वर्क में होना चाहिए, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में होना चाहिए, ठीक है. एंड भाई मैं आपको ये बात कह रही थी ना कि आप किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हो, ठीक है, कोई आपकी हेल्प करेगा, आप अपनी ट्राइब को अट्रैक्ट करोगे, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर आएगा जो आपकी मदद करेगा आपके काम में, जिस भी चीज़ को लेके आप पैशनेटेड हो, ठीक है. और फिर वहाँ से आपको नेम, फेम, मनी सब मिलेगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. दिस वाज योर रीडिंग. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय.